The way he caught the ball, it's almost impossible for many of us. Very good athlete, agile, athletic. He'll bowl the first over for Master Blaster and Jabin will face it. Scorer ready? Scorer is ready. Camera team is ready. Umpires, green signal from the control room to start the match. Here comes the first ball of day 5 of Yangon Super League 2. Chandimal will bowl to Jabin, who is in a great form, and it's a power play. Here we come with the first ball of the match number 1. Short over length, tried to pull it, but the short leg fielder was there, straight into the hands, no run. Today we have the food partner Balaji Indian Restaurant. You can enjoy the snacks to the left of the stage. Curly fuller length, tried to play it on the leg side but couldn't time it. There was a chance, but Rukman was far away from the ball. There was a chance, but Rukman couldn't reach the ball. Strike rotated, now Ninad will face Chandimal. Ace Warrior opens their count of the runs with the first single from the bat. Short of a length on the leg side and the wide conceded. The additional run, bonus run for the Ace Warrior. They'll be happy to secure one more run in their account. This time on the offside and once again a wide. I think he's deviated from his line. He would like to make a comeback on the 4th delivery of this over. Short of a length, good comeback from Chandimal. I think there was an edge. But still, there's a dot ball. He made a good comeback. After 2 consecutive wides, he'll bowl the next ball to Ninad. Good ball, fuller length ball. Just pushed it towards the gully for a single. The man in form for Ace Warrior, Jabin, will face the next delivery from Chandimal. He has shown some class, played some wonderful innings for the Ace Warrior. Oh, tried to play across the line, completely missed it. Ball hits on his leg, there's no run. It's going to be a really good contest between two of the teams. Ace Warrior, team in form. Master Blaster is also coming with the momentum for last 2 games. Jabin is ready with the bat. He'll face the Chandimal. Again, try to playing the same shot across the line. There was some miscommunication. Oh, once again, there was a miss of a chance. There was a chance of run out. Rukman tried hard, but couldn't capture the wicket for the team. It was quite a close call. There was some miscommunication between the 2 batsmen. Finally, they could able to get 1 run. And with this, there's the end of the first over of the first inning. The match between Ace Warriors and Master Blaster. The score is 5 runs for no loss. The next over will be bowled by Ram Singh, who has been quite a successful bowler for last match. He grabbed the award of man of the match in the last game. Will he able to continue the same form? Can he break the partnership of Ace Warriors, or Jabin will make attack on him? Jabin has been one of the lead scorer in this tournament. Will face Ram Singh, who is a successful bowler for Master Blaster. Quite a lengthy run up. There is a change in the field. Here we come with the first ball of second over. Again, Jabin is trying to hit the ball on the leg side.
He's walking across the line, missing the ball one more time. Straight into the hands of the keeper Amandeep. Amandeep Sharma from Amritsar. Good start of the over by Ram Singh. Good length ball again, and there was a close call. There's a big appeal, I think. Jabin struggling with his shots. He's again trying to attempt the shot on the leg side, walking across the stumps, making a way to sweep the ball on the leg side, but failed again one more time. Here is Ram Singh with the third delivery of the second over. Short of a length, punch down to the point. There was a chance of run out. I think keeper missed it. Ninad was lazy in the run. He thought he'll make it, but it was quite a close call. Had it hit the stumps, it would have been easily clear out. Now Ninad will gain the strike. Will face the fourth delivery of second over from Ram Singh, who's done wonderful in last three balls. A bit of full ball, tried to hit on the covers, missed it, and the ball went straight away to the keeper's hand. Till now it has been a good over from Ram Singh. Just single considered, 3 dot balls. Master Blaster must be happy with this performance. Bit of a short length. Again, he wanted to play on the offside, missed it completely. Just a single considered in this over. The captain must be happy with his bowler, Ace Warrior, trying to accelerate the score but not been able to do so. Full length go up and it's over the covers. I think it's on long off. He stopped the boundary. That's good fielding by Shantaram Sawant. Just a single with this end of second over. Just 2 runs conceded. The score is 7 runs for the loss of no wicket. It was fantastic bowling by Ram Singh. Good start from the Master Blaster. Ace Warrior is in good form. They can make comeback anytime. Master Blaster has to keep them tight so that they could restrict the team in form to the minimum score. The third over will be bowled by Munna, who is also in great form. A good bowler, good pace bowler. There is a change in the fielding. Now Ninad will face Munna. This is the third over of the first inning. The match is on between Ace Warriors and Master Blasters. Here comes Munna to Ninad. Full length ball, try to play towards the covers. Easy single. Jabin will face Munna now. This is the first match of the day. Master Blaster won the toss and they decided to field first. Outside the off stump, quite a wide outside edge. The short third man fielded it. There was a bit of misfield. Easy single for Ace Warriors. There was a steady and slow start for the Ace Warriors. They have written, till now they have not lost any wicket. They can make comeback anytime. They have quite a strong batting lineup. Fuller length Gale. Ball. There's no timing in it, but still could manage to take a single run. Once again, a good start of the over by Munna. This is the third over. The Ace Warrior started this inning a bit slowly. But it's a short format. The game can swing within an over or two. They're just waiting for that one over.
Once again a fuller length. The bowling quite inside the crease. They are not giving any room. They are not giving any length to the batsman to convert into the bigger shot. The batsmen are struggling. Munna is in good rhythm. Just a single run in this over as well. It's a full toss on the leg side and it's a big wide by the umpire. Munna just deviated from his line. He bowled wonderful 4 deliveries, but this time he lost his line. And there is a extra run for the Ace Warriors. They must be happy. They need runs now. Munna with the long run up will bowl next delivery to Jabin. Once again, Jabin trying to hit too hard. There is no connect between bat and ball. The result is same. Dot ball. With each dot ball, there is a pressure on batsman, but I'm sure the Jabin is a good batsman. He can play under pressure. He can convert into the beginning. It was a fantastic shot, and as I said, Jabin is a great batsman. He can make comeback anytime. That's the shot he was trying for the long time. Couldn't make it, but this was the ball out of the park for the MTTM maximum. Wonderful shot over mid-wicket. Well connect. Full length ball. Again, Jabin tried to hit across the line. Ball went to the deep mid-wicket for single run. Once again, good start of the over by Chandimal. Master Blaster was really happy. Walked across the line and the ball went to the third fine leg for the boundary. Ninad just walked across the off stump so that he could pull the ball towards the leg side. He could able to manage the inside edge and the ball went to the boundary on the fine leg. Now slowly Ace Warrior started accelerating the run rate. This is the 4th over of the first inning, match number 11 of day 5. It was interlocked. Chandimal tried, really had to stop the ball but couldn't make it. Easy single run. Now Jabin will face Chandimal. Jabin is trying to hit the ball across the line. He was successful in the last over. It's his strong zone and he scored most of his run in that area. He's capitalizing on his strength. Full length ball again the same result into the hands of the keeper. Very good bowling by Chandimal. He knows that Jabin is walking across the line. He bowled the fuller length ball. It was difficult to pick it up. Again the same attempt, playing across the line. There was a chance of run out and it's out. It's out. Wonderful piece of fielding by Chandimal. There were so many dot balls that was building the pressure on Jabin. He was trying really hard to go across the line and hit outside the park. He was struggling. The Chandimal and the Master Blaster came with a plan. They didn't give any room, any chance to Jabin. And finally, there was a mistake in communication. They tried to steal the single from one of the best fielders in this tournament. The Chandimal himself collected the ball and sent back the Jabin to the pavilion. It's a big wicket for Master Blaster and big setback from Ace Warriors. Now Vishnu, one more batsman in form, performing really well with the bat and ball. He really needs to put up some good score for his team, which he's capable of. He's shown his potential in last 3 matches, coming with a good form. Again, Rahul BC using his mainstream bowlers, the bowlers who are successful. He wants the wicket.
He want to restrict the Ace Warriors, the very deadly team with wonderful batting lineup, bowling lineup. Ram Singh is going to bowl the next over. This is the fifth over of the first inning of VKR YSL 2, day 5, match number 11. Match is played between Ace Warriors and Master Blaster. Master Blaster won the toss and decided to field first. They started really good. Now Ram Singh will bowl the next ball. Short of a length on the back foot, he tried to play. The point fielder fielded, but there was a misfield. It was a good attempt from Rukman. Harry fielded comfortably, it would have been out. There's a good running between the wicket between Vishnu and Ninad. Both the batsmen are in form. Ninad is playing really good since match number 1. He has contributed quite a huge amount of runs for his team. One of the key success factors of the tournament for the Ace Warrior is Ninad along with Jabin. They always gave the good start for the team. Here comes Ram Singh to Ninad. On the back foot, and he punched it down to the extra covers for the boundary. Here comes the My Stamina boundary. Good shot by Ninad. There was a short of a length ball. He read it correctly, went on the back foot, made the room for himself, and punched down it to the extra cover for the boundary. It's My Stamina boundary. There's some cheers in the dugout of Ace Warriors. After a long time, they got the boundary. They must be happy. From here, they would like to accelerate. Again, short of a length ball. Again, over the covers for the 6 runs. Wonderful batting by Ninad. His acceleration comes from the Ninad, the man in form. Similar delivery, went on the back foot, made the room himself. There's a good connect between bat and ball, and the result is MTTM maximum over the covers. Can Ram Singh make the comeback now? Now this time full length ball, good comeback. No run, fielded by Chandimal, one of the best fielders of this tournament. Good comeback by the Ram Singh. The last 2 deliveries were the short, and it was punished by Ninad. He was waiting for the loose balls. He got the 2 and converted into big scores. Again fuller length, and this time again through the long off just for the single. Now Ninad is connecting the ball really well, timing the ball. That's a good sign for Ace Warrior. Vishnu will face Ram Singh for the first time. Good length ball, and there is outside edge, ball running to the third man boundary. Fielder is chasing it down, and would like to see wonderful fielding. That's a good fielding. He certainly saved 2 runs for his team. Good fielding by Raja. He wanted to play the cut shot. There's outside edge. Ball went to the third man. And at the we would like to thank our sponsors, VKR Pharmacy, for being the title sponsor of this tournament. Royal British International School, you're seeing us live. You're enjoying the game because of Royal British International School. The Coriander Leaf Indian Fine Dining Restaurant, thank you so much for your contribution and participation in this tournament. Next over will be bowled by Nitesh Sawant. He's a very good bowler with good action, lean body frame, quick in run up. This is the 6th over. Oh, it is a short ball, and umpire called it as a wide. He lost his rhythm, pitched it
too short for a wide. There is a dead ball. The batsman was not ready. This is the 6th over of the first inning, bowled by Nitesh. Good ball again. Ninad wanted to play on the leg side. Oh my God. He tried to play on the leg side. He missed it. And after hitting his body, the ball hit the stump. He got bowled. It's really unfortunate way to get out. He was really looking dangerous. Just a bad luck. He wanted to play on the back foot and wanted to pull on the leg side. The ball kept low. Ball hit on the leg and after that on the stumps and it was out. It's quite unfortunate. He was looking really good. Must be unhappy with him. The luck matters during these such times. He just got unlucky. Master Blasters must be really happy. Both these openers are back in pavilion. The captain Karan will replace Ninad and face Nitesh Sawant. Outside the off stump, too far. It's a bit of exercise for umpire Sunil. We would like to thank our umpire kit sponsor Avis. It's a full length delivery into the slog. No runs, straight to the bowler. Karan is really good cricketer. We have seen him for the last many years. He's wonderful captain, the batsman with a good temperament, know how to build the innings. Again, full toss on the leg side. He flicked away towards deep mid wicket for a single. Now I would like to invite my fellow commentator, Mr. Nabi, who will take you through the journey of this wonderful match. धन्यवाद दशरथ भाई। और 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चला है 41, 2 विकेट के नुकसान पे। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं एस वॉरियर। अच्छी पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आउट हुए हैं विष्णु, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। पिछले 3 मैचों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था बल्ले से और गेंद से, लेकिन इस बार थोड़ा असफल रहे। एक अच्छी गेंद, क्या नाम है बॉलर का, शांताराम, शांताराम सावंत की एक अच्छी गेंद टप्पा खा के बाहर की तरफ निकली थी, बल्ले का किनारा लगा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहाँ पे 1 विकेट और गिरता हुआ एस वॉरियर का एक स्कोर हो चला है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 1 गेंदें शेष इस ओवर की और बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं मयूर जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज है। मुझे याद है ISL 1 के में उन्होंने पहला जो 50 मारा था वो मयूर के बल्ले से ही आया था और आते ही के साथ इसे कट किया है कवर की दिशा में 1 रन के साथ। तो इसी के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर किया है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 के एवरेज से रन बनाते हुए यहाँ पे एस वॉरियर की टीम, कप्तान करण नॉन स्ट्राइक पे। अभी भी काफ़ी सारी बैटिंग शेष। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर से मुन्ना के हाथों में। काफ़ी युवा कप्तान है राहुल और यहाँ पे अपने गेंदबाजों से बात करते हुए और बात करने के बाद मुन्ना को गेंद दिया है। सामने है मयूर। अच्छी गेंद थी और उसे सिर्फ दिशा दे दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। तो मैंने आपको परिचय ही दिया था कि मयूर एक बहुत ही अच्छे आक्रामक बल्लेबाज हैं और उसका परिचय उन्होंने आते के साथ दिया है। एक छोटी
गेंद थी और उसे सिर्फ दिशा दिया स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। तो एक बार फिर से मुन्ना अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार होते हुए, सामने है मयूर काफी आक्रामक मुद्रा में, और ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वापसी। जानते हैं कि मयूर को अगर मिडिल और लेग स्टंप की गेंद डालेंगे तो सारा दिन वो मारते रहेंगे वहां पे, तो उसी का से सीख लेते हुए उन्होंने इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखा। थोड़ी सी पटकी हुई थी ऑफ स्टंप के बाहर और बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट हुए। एक बार फिर से मुन्ना, और एक बार फिर से अच्छी गेंद मिडिल लेग स्टंप पे घूम के मारने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, 46 रन है यहाँ पे। एस वॉरियर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर वाइड, तो यहाँ पे इस वाइड के साथ 1 रनों का और इजाफा। जिस गति से एस वॉरियर रन बना रही हैं वो 70 से 80 रन के आसपास जा सकती हैं, लेकिन काफी बल्लेबाजी शेष है। और इस गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पे बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन ही मिलेगा। तेजी के साथ इस रन को चुराया कप्तान करण ने, और यहाँ पे अब स्ट्राइक लेंगे करण, जो कि 2 गेंदों का सामना करके 1 रन बनाया है अभी तक। मुन्ना जो कि अपने स्पेल की अंतिम और यहाँ पे मारने की कोशिश, सीधा पॉइंट के हाथों में दे बैठे हैं। तो यहाँ पे करण का विकेट गिरता हुआ, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मुन्ना के द्वारा, जिस विकेट की तलाश थी उस वो विकेट दिलाया है। करण का विकेट गिरता हुआ यहाँ पे, करण आउट होकर जाते हुए पवेलियन के बाहर। बहुत अच्छी गेंदबाजी मुन्ना के द्वारा, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, गेंद टप्पा खा के और थोड़ा बाहर जा रही थी। करण इसे कवर के सर के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे। तो आप हमारे, और एक अच्छी तकनीक के सहारे यहाँ पे नितिन 1 रन से अपना खाता खोला। तो सात ओवर की समाप्ति पे 49 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे तमाम जो श्रोता जो यूट्यूब पे मैच, लाइव मैच का प्रसारण देख रहे हैं, उन्हें भी आज फुल मून का यहाँ पे दर्शन होता हुआ। और यहाँ पे पावर प्ले लिया है, मैंडेटरी पावर प्ले, 8वां ओवर, जो कि एक बैटिंग पावर प्ले है, और इसमें सिर्फ 4 फील्डर ही बाहर रह सकते हैं। अमूमन तीसरे ओवर से 10वें ओवर के बीच में 5 फील्डर बाहर रखने का जो प्रावधान है, उसमें 1 ओवर पावर प्ले है जिसमें सिर्फ 4 फील्डर बाहर रख सकते हैं, और बल्लेबाज टीम 6ठी से 8वीं ओवर के बीच में उसे चुन सकती है। पहली गेंद बहुत अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा यहाँ पे अंपायर सुनील के द्वारा। तो नितिन, काफी अच्छी क्लास है उनके पास, ऑफ साइड में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। देखना ये होगा कि आज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे उसे कट करने की कोशिश, बड़ी आसानी के साथ 1 रन चुराया यहाँ पे। तो नितिन, और इस 1 रन के साथ एस वॉरियर का स्कोर हो चला है 51 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो 50 रन पुरता हुआ यहाँ पे एस वॉरियर का। बल्लेबाजी के लिए मयूर हैं स्ट्राइक पे। अभी भी 17 गेंदें शेष हैं इस ओवर की, इस मैच की। अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, दोनों ही बल्लेबाज दौड़ के रन चुराना चाहते थे,
लेकिन आखिरी समय में मयूर ने मना किया। तो अब देखना ये होगा कि जो अभी बची हुई 16 गेंदें इस पारी की हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रन बना पाते हैं। एक तरफ जहां मयूर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, दूसरी तरफ गेंदबाजी शांतारमन सावंत के हाथ में। और इस गेंद को उठा के मारा है सीधा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो यहां पे MTTM मैक्सिमम छक्का। तो इस छक्के के साथ यहां पे एस वॉरियर का स्कोर हो चला है 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की शेष। तो बहुत ही अच्छा, जो कि मैंने पहले ही बताया था, मयूर काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। और एक बार फिर से इसे मारा है मिड विकेट की दिशा में, लेकिन इस बार वहां पे फील्डर हैं, आसानी के साथ सिर्फ 1 रन मिलेगा। काफी अच्छी शॉट थी वहां पे, और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में एक बड़ा सा गैप है, उस गैप में मारने की कोशिश थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद थोड़ा और स्क्वायर की तरफ गई, जिसकी वजह से काफी आसानी के साथ इसे फील्ड कर लिया। तो इसे 1 रन के साथ 58। और बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन आसानी से चुराया है दोनों बल्लेबाज ने। तो यहाँ पे नितिन की जो जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मयूर को दें, ताकि मयूर बल्लेबाजी कर सके। और 1 गेंदे शेष इस ओवर की। शांताराम ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी और बहुत ही अच्छी गेंद, स्लो डिलीवरी। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। तो स्ट्राइक रखेंगे मयूर यहाँ पे अपने पास। अभी भी इस पारी की 12 गेंदें शेष। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस 12 गेंदों में कितने और ज्यादा रन एस वॉरियर बनाती है। 60 रन अभी तक इस पारी में उनके बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 2 ओवर शेष। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब यहाँ पे हुसैन के पास शायद। कप्तान राहुल, युवा कप्तान, काफी अच्छी कप्तानी करी है उन्होंने इस लीग में, और इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है हुसैन को। तो हुसैन अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, सामने है मयूर काफी अच्छी फॉर्म में। शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड। तो यहां पे वाइड से इन्होंने अपने बॉलिंग की शुरुआत करी है हुसैन, जो कि पहला ओवर है उनका। और एक अच्छी गेंद फुल लेंथ, बैट्समैन उसे धकेल कर सिर्फ 1 रन चुराया है यहां पे। तो अब यहां पे नितिन स्ट्राइक पे होंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। काफी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरीके से बीट किया। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा निर्णय यहाँ पे कप्तान राहुल के द्वारा हुसैन को गेंदबाजी देते हुए। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। तो इस वाइड के साथ इस वॉरियर का स्कोर हो चला है 63 लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बार फिर से हुसैन, शॉट ऑफ लेंथ, और इसे मिड विकेट और मिड विकेट के पास मारा है। 4 रन मिलेंगे यहां पे। एक अच्छी शॉट थी, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में मारा था इस शॉट को। काफी अच्छा, बड़ा गैप भी है वहां पे, और उस गैप का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पे नितिन। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, उनको पता है कि गेम को किस मोमेंटम में किस तरह से लेके जाना है। एक और बेहतरीन शॉट, सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और यहां पे माई स्टेमिना चौका, बैक टू बैक माई स्टेमिना चौका यहां पे नितिन के बल्ले के द्वारा।
तो जो बातें मैंने कही थी कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्हें पता है कि कब किस किस सिचुएशन में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, और उसका पूरा का पूरा यहाँ पे परिचय देते हुए उन्होंने 2 गेंदों पे 2 चौका लगा चुके हैं। और एक और गेंद यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। कोई बल्ले से गेंद लगी नहीं थी, पैड से टकराई थी, गेंद वहीं थी फॉलो थ्रू में। और यहाँ पे अंपायर सुनील ने इसे थर्ड अंपायर का इशारा, तो यहाँ पे रिव्यू रन आउट का। तो अंपायर ब्रह्मा राजू से अपील है कि चेक किया जाए। इस ओवर की अभी भी एक गेंदें शेष हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पे मयूर ने जो रन लिया था वो रन पूरा कर पाए हैं कि नहीं। और जो श्रोताएं यहाँ मैदान में आ चुके हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे फूड स्टॉल लग चुका है, बालाजी फूड का फूड स्टॉल लग चुका है। आप जिन लोगों को यहाँ पे स्नैक्स भोजन की का पूरा व्यवस्था है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स से ठीक बाईं तरफ बालाजी का स्टॉल लग चुका है, और जिन लोगों को अपनी भूख प्यास मिटानी हो वो वहां जाके स्नैक्स और नहीं है ना, हाँ बैट रखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, डाउट नहीं, डाउट नॉट आउट। यहाँ पे अंपायर ब्रह्मा राजू का डिसीजन नॉट आउट। आप रिप्ले में भी देख सकते हैं स्क्रीन में। फिर से अंतिम गेंद, और अच्छी गेंद थी, इसे सामने की तरफ मारा है, 1 रन लिया है, और 1 ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इस ओवर में 13 रन बने हैं, और इस वॉरियर का स्कोर हो चला है 73 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अंतिम ओवर की जिम्मेदारी यहाँ पे शायद राजा के पास। राजा जो कि पिछले मैच में भी काफी अच्छी अंतिम ओवर उन्होंने डाला था, मात्र 6 रन दिया था, और इस मैच में भी अंतिम ओवर डालने का निर्णय यहाँ पे कप्तान राहुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, और इसे मारा है यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा यहाँ पे। बहुत छोटी गेंद थी, और काफी समय था बल्लेबाज को उसे मारने के लिए, किसी भी कोने में मार सकते थे। शायद बल्ला पहले चल गया और गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में। बंद हो रहा है ये माइक बंद हो जा रहा है। हेलो हेलो।
Check, check. अबे हाँ नहीं Check, check. हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे 3 रन नहीं जा रही। एस वॉरियर का स्कोर 78 78 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 3 गेंदें शेष इस ओवर की। इस 3 गेंदों में देखना ये होगा दिलचस्प के और कितने रन बना पाती है। 78 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से राजा और इसको अच्छे से मारा है। लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद गई है। एक बार फिर से देखना होगा रोक पाते हैं कि नहीं। और बहुत इस संभवतः 2 रन अपने टीम के लिए बचाया। और इस बार फिर राजा की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। 1 रन मिलेगा यहाँ पे सिर्फ। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 80। तो जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 70 से 80 का स्कोर जाएगा, तो 80 का स्कोर पहुंच चुका है। 1 गेंदे शेष हैं और 81 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। राजा एक बार फिर से तैयार होते हुए सामने होंगे नितिन सूद। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछले ओवर में Check, 2 check, बैक check. टू बैक चौका मारा था उन्होंने। Check, check. और अब अंतिम गेंद का सामना करेंगे राजा एक बार फिर से। और एक बार फिर से उसे स्क्वायर कट किया है। 1 रन बड़ी आसानी से ले लिया है और दूसरे रन की कोशिश यहाँ पे रन आउट। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक और विकेट का पतन। तो 10 ओवर की समाप्ति पे 82 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही शानदार यहाँ पे क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी का मुजाहरा हेलो? पेश किया है हेलो? मास्टर ब्लास्टर हेलो? की टीम ने। काफी नपी तुली हेलो? गेंदबाजी। किसी गेंदबाज ने Hello? Hello? 7-8 Hello? से ज्यादा के एवरेज से रन नहीं दिया, जो कि एक एक्सेप्टेबल Hello? Hello? बॉलिंग एवरेज है। और मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर आप एज ए बॉलर 8-10 रन भी देते हैं तो ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। किसी टीम को यहाँ पे अगर बिलो 90 आप अगर रोक पा रहे हैं तो एक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। तो यहाँ पे एस वॉरियर जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में थी, पिछले 3 मैच उन्होंने जीते हैं, तो उन्हें 82 रन पे रोकना एक अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा मास्टर ब्लास्टर के लिए। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मास्टर ब्लास्टर और कितने रन बनाते हैं जीतने के लिए और कैसी बल्लेबाजी करते हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।
နာကျင်ကြိုက်ခဲဝေဒနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိုဒီရဲ့ Far Infrared Blaster ဟာလျှော်ချွေးနေပါလား ဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အောင်လုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲ ရင်းနှီးကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး Royalty Figure Pharmacy ဆေးဆိုင်ဟာဆိုရင်ဆေးဝါးများနဲ့ဆေးဝါးဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုအာမခံအပြည့်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပြီးကာစတမာများအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့အနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း9ဆိုင်ကိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စမ်းချောင်းလမ်းမတော်ပဇွန်တောင်ထောက်ကျန့်နဲ့လှဲကူစတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဖူးဘန်နာကနေလည်းမှာယူရရှိနိုင်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ Fast Delivery ဝန်ဆောင်မှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်हेलो और यहाँ पे पारी का आगाज पहली गेंद यहाँ पे मनोज की कोई रन नहीं एक और अच्छी गेंद बैकफुट पे उसे जाके पंच किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में निर्मल काफी अच्छी फील्डिंग करा उन्होंने तो स्ट्राइक पे अब आ गए हैं रुकमन लुइस श्रीलंका से हैं काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं एक अच्छे गेंदबाज भी हैं और सामने मनोज और एक अच्छी गेंद थी उसे फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की दिशा में एक रन आसानी के साथ मिलेगा और यहाँ पे बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का परिचय देते हुए दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ चुरा लिया है स्कोर ऑन करके रखो बहुत अच्छी गेंदबाजी मनोज जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पर्पल कैप होल्डर हैं और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पे सामने होंगे रुकमन लुइस और अच्छी गेंद सामने की दिशा में उसे सिर्फ धकेल दिया वहां पे शॉर्ट कवर में कप्तान करण की शानदार फील्डिंग और एक रन लेने से नहीं रोक पाए तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन एक बार फिर से राजा और
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मिडिल और लेग स्टंप पे टप्पा खा करके बाहर की तरफ निकलती हुई, पूरी तरीके से चकमा खाए यहाँ पे राजा। और इस गेंद पे कोई रन नहीं, तो 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, मात्र 4 रन है मास्टर ब्लास्टर का स्कोर। अंतिम गेंद के साथ मनोज एक बार फिर से सामने होंगे राजा। और एक अच्छी गेंद थी बट टप्पा खा के लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड। तो इस वाइड के साथ 5 रन मास्टर ब्लास्टर का स्कोर। अभी भी 1 गेंद शेष है इस ओवर की और गेंदबाजी एक बार फिर से मनोज के हाथों में। तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है उन्होंने इस पूरे स्पर्धा में और उसी का नतीजा है। और एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड। तो मनोज ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है इस पूरे स्पर्धा में और उसी का नतीजा है कि जो एस वॉरियर की टीम है उन्होंने काफ़ी, जो छोटा टोटल भी है उसको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है उनके पास। मनोज, कप्तान करण, निर्मल और भी बहुत सारे गेंदबाज हैं। एक अच्छी गेंद, इसे मारने की कोशिश जोर से और यहाँ पे थोड़ा सा चांस था रन आउट का। एक अच्छी फील्डिंग करी थी यहाँ पे मयूर ने, लेकिन थ्रो नहीं कर पाए सही समय पे और उसी का नतीजा था। अच्छा, आदित्य केडिया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे माही थे 7 नंबर जर्सी के साथ। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं आदित्य केडिया। और विष्णु एक बार फिर से गेंदबाजी, पिछले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। काफ़ी अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन किया था उन्होंने और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में है वो। एक बार फिर से सामने होंगे राजा, जो कि पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। विष्णु ने इसे जोर से मारने की कोशिश, गेंद गई है, गेंद वहीं पे स्क्वायर लेग के पास, 1 रन आसानी के साथ। तो राजा, जिन्होंने पिछले मैच में मेरा, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 40-42 रन बनाया था उन्होंने, तो एक अच्छे फॉर्म में है। एक बार फिर विष्णु रुकमन के लिए, और यहां पे चारों खाने चित कर दिया है, बोल्ड मार दिया है यहां पे। एक अच्छी गेंद टप्पा खा के थोड़ा नीची रही, बल्लेबाज इसे बैट करके इसे सामने की तरफ मारने की कोशिश कर रहे थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और यहाँ पे उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। रुकमन लुइस को अपना विकेट खोना पड़ा और इसके साथ ही पहली सफलता यहाँ पे एस वॉरियर को रुकमन लुइस के रूप में। तो 8 रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ रुकमन लुइस आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। तो 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे मास्टर ब्लास्टर का अब बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं सारन। काफी अच्छा बैटिंग करते हैं, मिडिल और लेग स्टंप पे काफी मजबूत है उनकी बैटिंग। और एक बार फिर से विष्णु गेंदबाजी के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे। तो मैंने कहा था काफी अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन किया है उन्होंने इस पूरे सीरीज में। एक बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। एक अच्छी गेंद थी, टप्पा खाई, बाहर की तरफ गई। बल्लेबाज डबल माइंडेड थे कि उसे कट करें या पंच करें। और एक अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो इस वाइड के साथ 1 रनों का इजाफा मास्टर ब्लास्टर के स्कोर में 9 पे 1। एक बार फिर से विष्णु, अच्छी गेंद और उसे वहीं पे धकेला है स्क्वायर लेग पे। एक अच्छी फील्डिंग यहां पे आदित्य केडिया के द्वारा, लेकिन शायद ये रन नहीं होना चाहिए था। अगर थोड़े से और चुस्त होते तो शायद ये रन आउट का मौका मिल सकता था, लेकिन थोड़े से ढीले पड़े यहाँ पे आदित्य केडिया। और अब जूता वोता
थोड़ा रेस वेस स्लॉपी बांट रहे फील्डिंग हैं। था, थोड़ा स्लॉपी फील्डिंग था। थोड़ा स्लोपी फील्डिंग। विष्णु एक बार फिर से तैयार, और यहाँ पे उछाल के मारा है, देखना ये होगा क्या होता है। और ये बेहतरीन कैच यहाँ पे नितिन सूद का, तो यहाँ पे सेफ हैंड। कोरिएंडर लीफ प्रेजेंट सेफ हैंड्स। कोरिएंडर लीफ प्रेजेंट सेफ हैंड, और एक बेहतरीन कैच नितिन सूद का। बल्लेबाज राजा जो कि काफी अच्छे फॉर्म में थे, पिछले मैच में 40 रनों का उन्होंने योगदान दिया था, मैन ऑफ द मैच रहे थे और साथ ही साथ सुपर स्ट्राइकर ऑफ द डे भी रहे थे। तो उसका आज उनका विकेट गिरता हुआ, एक अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्लेबाज उसको घूम के मारने की कोशिश थी मिड विकेट के सर के ऊपर से, और बहुत ही शानदार क्षेत्ररक्षण का नज़ारा पेश करते हुए यहाँ पे नितिन सूद, जिन्होंने अपनी बहुत ही काम रहे, गेंद को आने दिया और बेहतरीन कैच। तो ये जो जितने भी यंगस्टर हैं, मैं उनको बता दूं कि जब आप मैदान में इस तरह से कैच लेते हैं तो जितना काम और कंपोज रहेंगे उतना बेहतर आप कैच ले सकते हैं। ये मैं अपनी टीम के भी युवा खिलाड़ियों से कहूँगा कि जब वो कैच ले रहे हों तो इस तरह से ही कैच लें। और बेहतरीन कैच का यहाँ पे एक मुजाहरा पेश किया है नितिन सूद ने। तो एक गेंदे और शेष हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं विष्णु, तो अपना काम उन्होंने कर दिया है आते के साथ। अब बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं कप्तान राहुल, काफी अच्छे युवा कप्तान हैं, काफी अच्छे युवा बल्लेबाज हैं, काफी जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर। और आते के साथ पहली गेंद यहाँ पे जोर से मारने की कोशिश, शायद किनारा था कि नहीं, एक उत्साह भरी अपील जरूर की गई थी गेंदबाज के तरफ से, कीपर के तरफ से, लेकिन वो गेंद शायद कलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन एक अच्छी गेंद यहाँ पे, और इस एक अच्छी गेंद के साथ विष्णु ने अपने ओवर का समाप्ति की है, अपने ओवर की। मात्र दिया है उन्होंने इस ओवर में 3 रन और 2 विकेट चटकाए हैं, दोनों ही बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज को चलता किया है। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी जबीन भुइयां। पहली गेंद और इसे मारने की कोशिश थी, स्क्वायर लेग पे गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जिस तरीके से बल्ला चलाया था, मेरी नजरें गेंद को ढूंढ रही थी स्क्वायर लेग में। बाद में जाकर के हमें हमारे साथी कमेंटेटर ने गेंद को दिखाया कि गेंद लॉन्ग ऑन पे है। एक अच्छी शॉट यहाँ पे राहुल की मिड विकेट की दिशा में। नितिन सूद काफी अच्छे फील्डर, काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षक हैं, काफी नौजवान हैं, अभी भी वो 25 साल के लड़कों को कॉम्पिटिट कर सकते हैं इस 48 की उम्र में भी। तो बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण। सामने है अब सारन, और यहाँ पे इसे कट करने की कोशिश, थोड़ा सा मिसफील्ड, और ये देखना ही होगा कि ओ यहाँ पे बहुत ही खराब यहाँ पे थ्रो विष्णु के द्वारा। थोड़ा उत्साह भरा थ्रो था, राहुल आधे पिच तक आ चुके थे और यहाँ पे रन लेने की कोशिश थी। सारन अपनी जगह से हिले नहीं, लास्ट में राहुल को वापस जाना पड़ा। अगर ये थ्रो सटीक और सही होता तो शायद यहाँ पे एक और विकेट मिल सकता था इस वॉरियर को, लेकिन एक अच्छा कमबैक यहाँ पे राहुल के द्वारा। वो भी काफी युवा, काफी तेज तर्राक प्लेयर हैं। एक बार फिर से जबीन भुइयां। सामने है सारन। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। तो एस वॉरियर के अभी तक के जो 3 गेंदबाज आए हैं, तीनों ही गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी नपी तुली लाइन लेंथ, काफी नपी तुली गेंदबाजी। तो और यहाँ पे एक अच्छी गेंद, फिर से जोर से मारने की कोशिश, पूरी तरीके से बीट किया। तो एक अच्छी गेंदबाजी, काफी नपी तुली, और जो जिस तरह की ये पिच है, अगर आप अच्छा गुड लेंथ गेंद डालते हैं तो एक अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को मारना बहुत मुश्किल होगा। और
एक अच्छी गेंद, थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के, दिशा से थोड़ा भटके, वाइड का यहां पे इशारा अंपायर सुनील के द्वारा। तो जो जिस तरह की ये पिच है, हमारे साथी कमेंटेटर गोपी जी बताएंगे कि जो एक, और यहां पे किनारा, और ये ड्रॉप, कैच ड्रॉप कर दिया है। बहुत ही खराब विकेट कीपिंग। तो मैंने आपको इससे पिछले मैच में भी कहा था कि इस स्पर्धा में अब तक जो विकेट कीपर की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी भी विकेट कीपर ने अभी तक ढंग से निभाया नहीं है। हर टीम को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा है अपने विकेट कीपर के द्वारा, जिन्होंने हमेशा 1-2 कैच गिराए हैं। 3 ओवर के बाद 13 for 2। 3 ओवर की समाप्ति, 13 रन, एक खराब क्षेत्ररक्षक, एक खराब क्षेत्ररक्षण का नजारा। जैसे नबी ने बोला, कीपिंग करना इतना आसान नहीं है इधर, और बॉल का पेस जज करना और ये मैट के ऊपर जो स्किड आता है उसको कवर करना। और जहां तक मेरा मानना है कि एक विकेट कीपर पे एक मैच का 30 से 40% जिम्मेदारी डिपेंड करता है। उसकी गलती पूरे मैच पे भारी पड़ सकती है। और यहाँ पे अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी आदित्य केडिया, मिस्टर केडिया, पहली गेंद और बोल्ड, सफलता। क्लीन बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे कल से ही कुछ अजीब सा नया एनर्जी लेके घूम रहे हैं आदित्य केडिया। बैक टू बैक विकेट, शायद लास्ट बॉल में भी विकेट लिए थे पिछले मैच में। और यहाँ पे आदित्य केडिया जो कि पिछले मैच में अंतिम गेंद पे उन्हें विकेट मिली थी और आज पहली गेंद पे विकेट लिया है, तो अभी वो हैट्रिक पे खड़े हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। एक बार चेक कर लो अगर विकेट। अरे यश पकड़िया। रहे हैं उसमें बहुत बेहतरीन गेंद और ये बहुत अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन और रन आउट की संभावना और जस्ट मिस्ड।
pero todo el mundo está loco. गेंदों में 66 रन्स रिक्वायर्ड। 17 रन। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निर्मल डोडिया। और यहाँ पे बेहतरीन आते गेंद के और साथ बोल्ड। Estamos flow शांताराम का विकेट गिरता हुआ। तो 17 रन में 4 विकेट्स और अब जीत के लिए चाहिए उनको 35 बॉलों में 66 रन 66। तो जो अब परिस्थिति बन चुकी है यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर को काफी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी होगी उनके बल्लेबाजों को। अभी भी उनके 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज सारन और अमन काफी ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। दोनों काफी क्रिकेट खेली है और मेरा मानना है कि अभी भी उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है ये 50-60 रन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से पहली और ये बेहतरीन गेंद अगेन निर्मल से ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से बीट किया। तो अब 32 गेंदों पे 66 रन। हमारे साथी कमेंटेटर हितेश भाई क्या लगता है आपको? और एक और अच्छी गेंद। नबी भाई मैच फंसता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली आई थिंक मास्टर ब्लास्टर इज अंडर प्रेशर और 4 विकेट जाने के बाद अब बैट्समैन की ये कोशिश रहेगी कि वो कहीं गेम को बेहतरीन गेंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये प्रेशर है क्या लग रहा है ये बल्लेबाज आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे? आई थिंक वो अभी आने वाली 1-2 ओवर में इसका डिसीजन आएगा। आई थिंक 1-2 ओवर किस तरह से बेहतरीन शॉट और ये 6 रन। तो मैंने जो पहले ही कहा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज आर इनफ कैपेबल टू डू एनीथिंग। देखो बहुत बढ़िया शॉट, स्क्वायर कट किया है और ये गेंद गई है थर्ड मैन फील्डर गली और ने थर्ड मैन की दिशा में। 2 रन मिलेंगे। बेहतरीन फील्डिंग वहां पे जबीन भुइया और मयूर के द्वारा। मतलब ये स्विंग होते जाता है कि ये टीम अंदर ये टीम बाहर। कल गोपी का कमेंट हमने सुना था कि रियल किंग्स उन्होंने सीधा ही बोले वॉकआउट हो गया, मतलब अभी तो कोई चांस ही नहीं है। बट आई थिंक जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ते जा रहा है, सामने विष्णु
और बहुत अच्छा बेहतरीन, शॉट, बहुत बेहतरीन बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ, एक एक रन रन के आसानी। लिए। और यहाँ पे बहुत तेजी के साथ, और बढ़िया यहाँ पे रनिंग। बहुत ही टाइट, और बहुत अंपायर ही टाइट कॉल है। अंपायर ने देखना नॉट आउट दिया दिलचस्प है। होगा कि अंपायर सुनील का क्या डिसीजन आता है। कप्तान करण रिव्यू ले चुके हैं अंपायर ने रिव्यू लिया और है। यहाँ पे अब तीसरे अंपायर सुनील की जिम्मेदारी है कि वो अब माफी चाहता हूं, ब्रह्म राजू की जिम्मेदारी है कि इसको चेक करके बताएं। बहुत ही टाइट कॉल है, बिल्कुल मैं अपने कमेंट्री बॉक्स से देख रहा था, काफी टाइट कॉल है। और यहाँ पे ये विकेट बहुत कुछ डिसाइड कर लेगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जाएगा अंपायर डिसीजन आउट। और यहाँ पे अंपायर, थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट। तो मैच फिर फंस गया। और इस परिस्थिति में इस तरह का जोखिम भरा रन लेना मेरे मायने से कहीं भी चतुराई भरी बात नहीं है। और इस तरह से एक और विकेट को दान दे करके जा रहे हैं वो। फुल्ली अग्री नबी भाई। और नेक्स्ट बैट्समैन श्रीलंकन चैंपियन हम कह सकते हैं, चंडीमाल। बहुत ही अनोखी उनकी एक बॉलिंग की स्टाइल है। तो अब सारन गेंदबाजी की जिम्मेदारी विष्णु पे। विष्णु एक बार फिर से, और यहां पे बेहतरीन शॉट, 6 रन। ठीक है, ठीक है। आउट है बस, बात खत्म। इसमें अभी कैसे करोगे? हाँ बस, अब कर ले, अभी तेरे को जो भी करना है कर ले। आउट होना वापस। एक और रन आउट। और यहां पे एक बार फिर से खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, एक खराब कॉल, और उसका खामियाजा है एक जमे हुए बल्लेबाज सारन के रूप में। तो जैसा कि मैंने कहा इससे पहले, अमन जो कि एक में 2 विकेट रन आउट के रूप में। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन। एक बार फिर से अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं राम सिंह। और एक अच्छी गेंद और पूरी तरीके से बिट के। अंपायर सुनील से अनुरोध है कि गेम को 2 मिनट के लिए रोका जाए, थोड़ा हमारी तकनीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक 2 मिनट के लिए गेम को रोका जाए। सुनील भाई से अनुरोध है कि गेम को थोड़ा 5 मिनट के लिए रोका जाए। वी विल कंफर्म यू बैक।
हमने है चंदीमल। चंदीमल होंगे स्ट्राइक पे, गेंदबाजी की Master जिम्मेदारी। Blasters need 51 runs in 24 balls. और Looks यहाँ a bit पे tight. बैटिंग पावर प्ले चंदीमल के द्वारा। गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान करण ने यहाँ पे आदित्य केडिया को दिया है। और चंदीमल काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने इस स्पर्धा में सबको। पहली गेंद और उछाल के मारा है इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे। और देखना दिलचस्प ये होगा कि ये 2 रन है कि 4 रन है कब यहाँ पे। और अंपायर सुनील का यहाँ पे 2 रन का इशारा। तो जो मैंने बहुत ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन नितिन के द्वारा। 2 रन रोके उनकी टीम के लिए। निर्मल के द्वारा। नितिन के द्वारा। क्या लगता है नबी? 23 balls 49 runs. थोड़ा सा अब डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि विकेट भी अब नहीं है मास्टर ब्लास्टर के पास। और काफी अच्छी गेंदबाजी भी कर रही है यहाँ पे एस वॉरियर। लेकिन इस बार एक बार उछाल के मारा है, गेंद गई है थर्ड मैन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल ही जो माई स्टैमिना बाउंड्री यहाँ पे चंदीमल और एक बार फिर से यहाँ पे मारा है इसे 6 रनों के लिए। MTTM मैक्सिमम छक्का। तो होगा और ये आउट। कोरिएंडर लीफ सेफ हैंड। तो आदित्य केडिया को एक और विकेट मिलता हुआ, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चंदीमल के रूप में गिरता हुआ यहाँ पे। तो मास्टर ब्लास्टर का यहाँ पे 7वां विकेट का पतन। बहुत ही कठिन परिस्थिति में यहाँ पे स्ट्रगल करती हुई मास्टर ब्लास्टर की टीम, जो कि एक अच्छे फॉर्म में थी। पिछला मैच बड़े ही आसानी के साथ उन्होंने यहाँ पे जीता था। और आज थोड़ी सी उनकी बल्लेबाजी फीकी पड़ती हुई 7 44 रन 7 विकेट के नुकसान पे आदित्य केडिया 3 विकेट ले चुके हैं अब तक इस मैच में। 2 विकेट, माफी चाहता हूं, 2 विकेट। सामने होंगे जेट। और इस बार फिर से उछाल के मारा है लॉन्ग ऑन। सामने है निर्मल। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। तो 6.4 ओवर की समाप्ति पे 44 रन, 6.5 ओवर की समाप्ति पे 45 रन 7 विकेट के नुकसान पे जेट। और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से बीट किया। तो इसी के साथ यहाँ पे केडिया, आदित्य केडिया ने अपने ओवर बाहर रख सकती है यहाँ पे इस वॉरियर की टीम।
लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन और 4 नजदीकी फील्डर कवर, एक्स्ट्रा कवर, गली और अच्छी गेंद गली के दिशा में। 1 रन आसानी के साथ यहां पे जवाहर जेट के द्वारा। तो It's getting a bit tight now. 17 balls, 37 runs required. 18 गेंदों पे 17 38 रन। 17 बॉलों पे अब 37 रनों की जरूरत। सामने है मनोज और यहां पे क्लीन बोल्ड कर दिया है। बहुत ही जोर से मारने की कोशिश। एस वॉरियर का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 1 ओवर गेम कभी भी पलट सकता है, किंतु अभी आखिर की सिर्फ 3 ओवर बची, उसमें से भी 2 गेंदें कर चुके हैं ऑलरेडी मनोज यादव। बेहतरीन गेंदबाजों में से एक, पर्पल कैप होल्डर है अब तक के। हिल बॉल टू ओ बहुत जबरदस्त गेंद, went like a rocket into the hands of keeper. Manoj is one of the best bowlers of this league. We have seen his performance, the most economic bowler as well as highest wicket taker till now. He's holding a purple cap till now. He'll bowl to Hussain. He's in a great form, Manoj Kumar Yadav. Onto the legs, umpire called it as a leg by. 1 run will add to the score of Master Blaster. They need big shots now if they want to win this match. We are almost toward the end of the second inning. Master Blaster still needs higher runs to win this match. Glance towards the fine leg. Jabin fielded and just a 1 run. Very good over by Manoj from the Ace Warriors point of view. They need the bigger shots now. Hussain is back on strike and will face Manoj Kumar Yadav, the man in form. Manoj once again. Wanted to play on the leg, missed it completely. Ball hit onto the legs, and the score is 48 runs for the loss of 8 wickets. Now Master Blaster need 35 runs in 2 overs. 12 balls, 35 runs required. He was successful in this. It's MTDM maximum. बेहतरीन छक्का. Made himself a room, picked up the ball very well, and the result is MTDM maximum. This is what Master Blaster required. Still, it's not late. The game can shift to any side. Exactly. They only needed 29 runs in 11 ball.
And it's a quite possible if you have a capable batsman on a strike. And I guess Jet is enough capable to do this. Nirmal, once again. Achhi Shuffled gain. across, wanted to disturb the bowler's length, but Nirmal was calm. Outside edge. There was A slightly sloppy ignorance fielding. It's from a Minhad. misfield. He thought they'll take only one run, but unfortunately they took the advantage. I request to hold the match for a while. We are switching to the power where there is a power change. There'll be the power change. Please hold for a second. There is a Runs in 10 balls now with the updated score. Went on the back foot, wanted to hit it on the leg side, but there was not a good connect. Ball drops in no man's land. Safe. Now Hussain is on back on strike. Jet is trying really hard to accelerate and achieve the target. There was a Achhi good gain. ball. Completely missed. एक बार फिर से निर्मल डोडिया जोर से मारने की कोशिश पूरी तरीके से बीट किया. And it was wide outside the off stump. There's one additional run for the Master Blaster. They'll be happy. As long as the ball is not wasted, the run is added to the score. They need bigger shots to win this match. Inside this log, the good change of pace, completely deceived by the batsman. Ball went into the hands of the keeper. Yet another dot ball. Every dot ball will secure the victory for the Ace Warrior. और एक और विकेट का पतन. 8वां विकेट. 9वां विकेट. माफी चाहूंगा. 9वां विकेट यहां पे गिरता हुआ मास्टर ब्लास्टर का 58 रनों के स्कोर पे 9वां विकेट. 8.5 ओवर की समाप्ति. अभी भी
ओवर की समाप्ति, सॉरी 9 ओवर की समाप्ति, 58 रन 9 विकेट के नुकसान पे। तो अब मात्र 1 ओवर का गेम शेष है। रिक्वेस्ट है कि गेंदों जल्द में से जल्द मैच शुरू किया जाए, कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं, कृपा करके प्लीज। अंपायर से आपको 6 परमिशन लेनी होगी गेंदों अगर में- ड्रिंक्स ब्रेक ले जाना है तो। 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत, मात्र 4 छक्का। अभी भी इस ग्राउंड पे पॉसिबिलिटी है, मारा जा सकता है, बल्लेबाज हैं, इनफ कैपेबल हैं, दे कुड डू इट। द बॉलर्स इज रेडी। जुबीन, This is final over. इट्स द फाइन, Short of a length and completely missed by the batsman. इट्स आउट, And it's out. इट्स आउट। Here is a winner for this match, Ace Warrior. Once again, they showed their class. Master Blaster did very good in bowling. They restricted the strong batting lineup to just 80 runs. But unfortunately, in batting side, they collapsed. There was not a single beginning from the Master Blaster. They failed to achieve the target. Congratulations, Ace Warrior. Hard luck, Master Blasters. I request Gopinath to do the post-match presentation followed by the toss of the next match. We would like to thank our sponsors, VCare Pharmacy, our title sponsor, Royal British International School. You can see us live. The broadcast, the streaming is because of Royal British International School's contribution. We are happy to share that Coriander Leaf has contributed generously for this tournament. MTTM Shipping Company, Golden Moon, Royal Croton, Eco Asia, Garuda Lubricants, VCare Pharmacy, Shekhana Overseas, Division Company Limited, Royal TMT21, Royal D, our energy drink sponsor, My Stamina, multivitamins, capsules and syrup, our drink sponsor, as well as the Maximum Boundary sponsors. We would like to thank the Myanmar Cricket Federation for accreditation, for recognizing this league and making it an official tournament in Myanmar. Thank you so much. Your collaboration has helped us to raise the standard of this tournament. Thank you all the sponsors. Without you, it was not possible to conduct such a huge tournament. I can see from the day one, the commitment level from the all the team is quite remarkable. All the family members are watching. Over to you, Gopi, for the post-match presentation and followed by toss. Thank you, Dashrath. We will probably do the toss first so that we can give enough time for the players to prepare in terms of setting the field. I request the main umpire, Mr. Sunil, to join. Captain from both the teams. Captain of Real Kings, Mr. Hitesh. Captain of MAT. Captain of GC Boys, Viren. Captain of GC Boys, Viren. Captain of Real Kings, Hitesh, to join for a crucial toss. So thank you for joining. So who will be calling? Real Kings is calling. Yeah, go for it. Heads is the call. Heads it is. And Hitesh, what do you want to do? Okay, Real Kings won the toss, chose to bowl first, and GC Boys will bat first. Any quick strategical points to update? Nothing, we have to win at any cost. Yeah, this is a must-win match for Real Kings, probably to stay in the tournament. And Viren, probably a practice match for you? No, we are taking it very seriously. It's our fourth match. If we win it, then we are confirmed in the first and second position. So we'll take it seriously, man. Yeah, that's good. So I think, yes, we are in the winning streak, and all the best for this match. And we will give 5 minutes for the fielding team to set the field. Meanwhile, we will proceed with the presentation ceremony for the previous match. I request both Master Blasters and Ace Warriors to join me, please. Ace Warriors. Still a lot of matches left in this tournament. You will have more occasions to celebrate. Please join us now. Ace Warrior, please, we have to start the next match.
Division is a dynamic and growing pharmaceutical company in Myanmar, with specialization in the importation, distribution, and regulatory services for healthcare and pharmaceutical products. Division Company has a strong track record from its experienced promoters, and is poised for continued success and growth in the sector. Shekana Overseas is a rapidly growing company in the FMCG sector, and we are expanding into the trading and export of local products from Myanmar. Masters, it was probably a must-win for Master Blasters. Now you are left with one more match in the tournament. And Ace Warriors comfortably in the top of the table. So Master Blasters won the toss, chose to field. Ace Warriors put to bat, scored 82 for 4 in their 10 overs. Top scored by Ninad, 21 in 15 balls. Good partnership at the end between Mayur, who scored 20, and Nitin, who scored 16. Very good bowling performance by Shantaram, who captured 2 wickets for 15 runs in 2 overs. Chasing 83, it was a tough fight. Very good bowling performance by Ace Warriors. Master Blasters were all out for 58 in their 9.1 overs. Top scored by Chandimal and Jet, 12 runs each.